Hello, welcome to my YouTube channel. Today in this video of the chapter Conditional and Looping Constructs, part 3, we are going to study about iteration construct or looping. Before this video in part 2, we have done sequential construct as well as selection construct. Selection construct was implemented using if statement. There we have studied four formats of if statement, that is simple if else, if elif and nested if. In this construct, looping construct or iteration construct, we will implement while and for loop. Let us begin with the video. Iteration. Question is, what is iteration or looping? So it is a process of repeating certain task for specified number of times or as long as specific condition remains true. It is also called looping. ये एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग कुछ लाइनों को, कुछ स्टेटमेंट को अपनी चॉइस के हिसाब से रिपीट करा सकते हैं, जिसका एग्जीक्यूशन बार बार रिपीट करा सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज इटरेशन कंस्ट्रक्ट और लूपिंग. In Python, looping is implemented using while and for statements. Now, question is, what is while statement? While loop है क्या, कैसे यूज किया जाता है, उसका सिंटैक्स क्या है? So, while loop in Python executes its block of statements as long as test condition of the loop remains true. As soon as condition evaluates to false, the loop is terminated. Means, if we see this diagram, so here a condition is defined. As long as this condition remains true, this part of loop is executed repeatedly and further the condition is tested on every iteration. हर repetition पर ये condition true false check करता है. True हुई तो this part of statements will be executed, again bounce back to test the condition. If condition evaluates to false, then loop is terminated and control goes out of the loop's body and proceeds to execute further program. Sorry. Now, syntax wise अगर हम देखें while loop को, तो while here you will define a condition, then colon symbol you must remember. अगर ये condition true हुई तो while loop के अंदर का indented block, ये जो ग्रीन कलर से मेंशन है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड सो ऑन, विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर ये ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. अगर ये फॉल्स हुई कंडीशन तो एल्स को एग्जीक्यूट करता हुआ, एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता हुआ, it will go to following statements in the further part of the program. Got it? Means while condition is tested, then this line will be executed and further control will bounce to test the condition again. If it is again found true, this will be executed, again found true, again it will be executed repeatedly. This is called loop's body. ये इतना portion loop का body कहलाता है. This indented block while के अलाइनमेंट से हट करके एक टैब स्पेस जो ये इंडेंटेड ब्लॉक है, ये लूप की बॉडी है. यही इतना पोर्शन बार बार रिपीट होगा. कब तक? जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी. कंडीशन फॉल्स होते ही प्रोग्राम एल्स को, कंट्रोल एल्स को एग्जीक्यूट करता हुआ, एल्स के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता हुआ, फर्दर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड. यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा पोर्शन लूप कहलाता है, व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर कहलाता है. फाइन. Let us take some practical example, then you will be able to understand it clearly. Now, here is first example.
to print an entered name 5 times. किसी भी नाम को 5 बार प्रिंट करना है, 100 बार प्रिंट करना है, 1000 बार प्रिंट करना है, तो आपको you have to, if you don't know the implementation of loop, then you have to print that particular name 5 times, 10 times, 1000 times. It will be quite lengthy process. So to save your time from writing such a big and huge lines of code, you have to implement the loop. So after implementing the loop, you can print that name as many times as you want depending upon the condition. So let us begin with this program to understand. हमने क्या किया, नेम आपका इनपुट करा दिया इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, एक वेरिएबल ले लिया काउंटर, काउंटर एक्स वाई जेड वॉट एवर यू वांट, यू कैन टेक द वेरिएबल. बेस्ड ऑन दिस वेरिएबल वी विल डिफाइन द कंडीशन, और जब तक ये कंडीशन ट्रू इवेल्युएट करेगी, व्हाइल लूप के अंदर लिखे हुए ये दोनों जो लाइंस हैं प्रिंट और काउंटर वाली, ये बार बार एग्जीक्यूट होगी. अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल जंप करके इन दोनों लाइनों को जंप करके इस अपने ब्लॉक को जंप करके कहां पहुंचेगा, फर्दर पार्ट ऑफ प्रोग्राम, एंड ऑफ द प्रोग्राम, और अगर इसके आगे भी आपने लिखा है तो वो भी एग्जीक्यूट होने लगेगा. ओके, सो लेट अस ट्रेस हाउ डज इट वर्क. In this program you can see while counter is less than equal to 5, counter is 1, which is obviously less than 5. So this condition is returning true. If true, then its block will be executed. Block में क्या है, पहली लाइन है print your name is, then the entered name. तो इसलिए यहाँ पर हमने जो एंटर किया है नेम, एंटर योर नेम अरुण त्यागी, सो ये आ जाएगा योर नेम इज डैश अरुण त्यागी, फर्स्ट लाइन प्रिंटेड. देन काउंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, हैज बिकम 2. कंट्रोल विल बाउंस बैक टू दिस कंडीशन. काउंटर दैट इज 2 इज लेस देन 5, इवेलुएट्स ट्रू. ये ट्रू फिर से आया तो इसलिए फिर से ये ब्लॉक में जाएगा और प्रिंट करेगा योर नेम इज अरुण त्यागी. Counter has become 3. 3 is less than 5. So true. Again your name is Arun Tyagi, third time printed, fourth time printed, then fifth time printed. Print हो गया. उसके बाद अब काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा. अब बाउंस करेगा तो यहाँ आएगा 6 लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स. As soon as this condition evaluates to false, control will not go to execute these lines within its body of loop. Rather, control will ignore these execution and will come to, this line which is below the loop. इस लाइन पर आ जाएगा एंड ऑफ द प्रोग्राम पर, और उसके बाद अगर मान लीजिए फर्दर लाइनें भी हैं प्रोग्राम की तो उसको एग्जीक्यूट करता हुआ बाहर तक एंड तक जाएगा प्रोग्राम के. So this is the working of while loop, numerically and practically. Let us take another practical example to print all natural numbers from 1 to n, where n will be entered by the user, and we have also to find the sum of 1 to n. यानी कि अगर मैं n की वैल्यू 5 देता हूं तो मुझे चाहिए 1 2 3 4 5, then at last sum of 1 to 5 is 15. अगर मैं n की वैल्यू 10 देता हूं तो मुझे चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10, लास्ट में चाहिए सम ऑफ 1 to 10 is 55, and so on. So let us see the execution of this program, how it happens. n मैंने इनपुट किया, enter the value of n. Suppose I have entered 5. If it will be true for 5, so it will be true for 10, 20, 100, 1000, 10,000, whatever. तो हम लोग 5 के लिए ट्रेस कर लेंगे तो वो उसी तरह से in the same way it will execute for other inputs also. Again I have taken a variable counter, or you can take xyz whatever, have been initiated by 1. एक वेरिएबल और लिया जिसमें सम आएगा, सम n equal to 0 because in the beginning sum is 0. Now a loop is being implemented while counter is less than equal to n. Counter is 1,
less than equal to 5 in this case. So it is true. Once it is found true, control will enter into its body. In its body it is written print counter. So काउंटर की वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पर प्रिंट हो गया. सम इक्वल टू सम प्लस काउंटर. काउंटर was 1, sum was 0. So 0 plus 1, sum is updated to 1. सम की वैल्यू मेमोरी में 1 हो गई. काउंटर प्लस इक्वल टू 1 मीन्स काउंटर भी एक से बढ़ करके 2 हो गया. अब यहां से कंट्रोल बाउंस करेगा कंडीशन के लिए, क्योंकि ये यहीं पर लूप का बॉडी खत्म हो रहा है. So from this point it will bounce back to test the condition again. So counter is 2 now. 2 is less than 5. True. Print counter. 2 is printed. Sum equal to sum plus counter. It has become 3. 1 plus 2, 3. Counter equal to counter plus 1. That was 2. So 2 plus 1, it has become 3. So this process will go on. So it will keep on printing 1, 2, 3, 4, 5. अब आपका 5 प्रिंट हो गया और यहां पर 5 का सम हो गया, यानी सम में 5 तक ऐड हो गया. दैट मीन्स सम में 15 आ चुका है. काउंटर की वैल्यू लास्ट हुई 6. बाउंस बैक. 6 इज नाइदर लेस नॉर इक्वल टू 5. ये कंडीशन फॉल्स हो गई. फॉल्स होते ही कंट्रोल क्या करेगा, लूप के ये तीनों लाइनें लूप के अंदर जो है लूप की बॉडी में, इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. इनका एग्जीक्यूशन इग्नोर करता हुआ कंट्रोल बाहर चला जाएगा प्रोग्राम के, व्हाइल लूप के अलाइनमेंट पे चला जाएगा, इंडेंटेशन पर चला जाएगा. और यहां आप प्रिंट कर रहे हैं सम ऑफ 1 to 5 is 15. वैल्यू ऑफ n will be substituted here, value of sum will be substituted here. So it will become sum of 1 to 5 is 15. ये आपको मैंने फॉर्मेट फंक्शन पहले पढ़ाया हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट. So this is how we can get all natural numbers printed 1, 2, 3, 4, 5. Then sum of 1 to 5 is 15. Okay. Now according to this while loop we can implement third example. तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं. टू प्रिंट टेबल ऑफ ए गिवन नंबर n. n का एक टेबल प्रिंट करना है. और जब भी हम टेबल प्रिंट करते हैं तो मैं 1 से लेकर के 10 तक जाता हूं. 1 से लेकर के 10 तक. इसका मतलब एक ऐसा कोई वेरिएबल होना चाहिए जो 1 से लेकर 10 तक वेरी करे, और जिसका टेबल हम लोग प्रिंट करेंगे वो तो कांस्टेंट है, फिक्स है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो उसका टेबल आ रहा है. ओके. सो हमें लॉजिक मिल गया है कि हमारा जो लूप है वो 1 से स्टार्ट हो और 10 टाइम्स रिपीट हो, यानी 10 तक जाए बाय इंक्रीमेंटिंग 1 by 1 अगेन एंड अगेन. सो हियर वी कैन सी द एग्जांपल. n मैंने इंटीजर टाइप इनपुट कर दिया जिसका टेबल आपको प्रिंट करना है. फिर से मैंने एक वेरिएबल काउंटर लिया जो कि 1 से शुरू है और कहां तक जाएगा, एज लॉन्ग एज काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 10. अब आपको समझ में आ गया होगा. इसको मैं थोड़ा फास्ट बता देता हूं. कंडीशन हो गई 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10. दैट मीन्स ये लूप 10 टाइम्स चलेगा और हर बार लूप के अंदर काउंटर को एक इंक्रीज किया जा रहा है. दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये 10 टाइम्स ये बॉडी रिपीट करेगा. यहां क्या कर रहे हैं आप, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं. प्रोडक्ट में जिसका टेबल चाहिए जिस नंबर का वो n में है, और काउंटर इज मेंटेनिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. So n means suppose I have entered 5. So 5 into 1, product is 5. 5 into 2 next time, product is 10. 5 into 3, product is 15. 5 into 10, product is 50. इस तरह से प्रोडक्ट में उनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है. फर्स्ट इटरेशन देखिए, प्रिंट यहां पर क्या आएगा, n. n means 5 क्रॉस, सपोज यू हैव एंटर्ड n as 5. 5 क्रॉस काउंटर इज 1. दूसरी वैल्यू यहां पर काउंटर आ जाएगी. 5 क्रॉस 1 इज इक्वल टू, तीसरी वैल्यू है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या है, 5 इंटू 1, ये 5. तो पहला आपका आया 5 क्रॉस 1 इक्वल टू 5. काउंटर हैज बिकम 2. बाउंस बैक. 2 इज लेस देन 10. ट्रू. देन प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड. 5 इंटू 2, 10. प्रिंट करेगा
n that is 5 cross as it is, यहाँ पर counter is 2 is equal to product is 10. So 5 cross 2 equal to 10 printed here. Similarly, counter will keep on increasing by one again and again up to 10. Suppose ये 9th टाइम आपका प्रिंट हो गया 5 क्रॉस 9 इक्वल टू 45. जरा इसको देखिए, 5 क्रॉस 9 इक्वल टू 45 इज प्रिंटेड. अब क्या हो गया, काउंटर हो जाएगा 10, ऊपर बाउंस हुआ, सो काउंटर इज इक्वल टू 10 ट्रू. सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 दैट इज 50. प्रिंट क्या करेगा, 5 क्रॉस 10 इक्वल टू 50. प्रिंट हो गया 5 क्रॉस 10 इक्वल टू 50. काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 10 हैज बिकम 11. बाउंस बैक, काउंटर दैट इज 11 लेस देन इक्वल टू 10, फॉल्स. ये फॉल्स मिल गया. बाय दैट टाइम वी हैव ऑलरेडी प्रिंटेड 5 इंटू 1 अप टू 5 इंटू 10. सो मेरा टेबल कंप्लीट हो चुका है. और ये हो गया 6, I mean 11 is neither less nor equal to 10. Condition is found false. So now the control will not execute its body. That is, ये तीनों लाइनें जो बॉडी के अंदर है लूप के वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी. कंट्रोल यहीं से बाउंस करेगा कंडीशन से और लूप की बॉडी के बाहर आ जाएगा जहां पर लिखा है एंड ऑफ द प्रोग्राम. सो बाय दिस टाइम प्रोग्राम इज एंडेड. अगर इसके बाद भी कुछ लाइनें हैं तो further the control will start execute those lines and will go towards the end of the program. So this is the working of this program, how while loop works to print the tables of any number, any given number. यहाँ पर 5 का है, मैंने अगर नंबर को 21 दे दिया तो you will get the table of 21. Suppose you enter the value of n as 59, so it will print the table of 59. So in this way you can implement while loop. Everything here your talent depend upon how to specify this condition. That is the major point of while loop. Secondly, while loop के अंदर जो आप ब्लॉक बना रहे हैं वो नेक्स्ट इंडेंटेशन पर रहेगा. तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि while loop के एंड में ये कॉलन लगाना जरूरी है. So these are the certain things that you should remember while writing the implementing the while loop. I think you have understood while loop. Now in this iteration construct, you can see it can iterate or repeat itself over set of values, and those set of values may be from any sequence data type such as list, tuple or string. यहाँ आप देख सकते हैं for any variable in iterable, this is a type of sequence जहाँ पर मैं iterable लिख रहा हूँ. ये एक सीक्वेंस है. फॉर पार्टिकुलर वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं, इन ए पार्टिकुलर लिस्ट और पार्टिकुलर टपल और स्ट्रिंग यू कैन स्पेसिफाई हियर. ये कलेक्शन डेटा टाइप है आपका, सीक्वेंस डेटा टाइप है. लिस्ट टपल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है यहाँ पर. सो ईच कैरेक्टर ऑफ दैट स्ट्रिंग, ईच वैल्यू ऑफ दैट लिस्ट, ईच वैल्यू ऑफ दैट टपल, उस पर ये काम करेगा फॉर लूप आपका. जब तक वो वैल्यूज उसमें रहेंगी तब तक इन ऑपरेटर आपका जानते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर है, तब तक ये ट्रू मिलेगा और तब तक ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, या और मेनी स्टेटमेंट्स ऑफ दिस ब्लॉक, फॉर का ब्लॉक है ये, वो सभी एग्जीक्यूट होंगे. फिर से जाके नेक्स्ट वैल्यू उठाएगा, उस पर ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट वैल्यू उठाएगा सीक्वेंस में से, इसको एग्जीक्यूट करेगा बार बार. इट विल कीप ऑन बी डूइंग as long as this iterable or you can say list, tuple, string has the values in it. As soon as the values in the list finishes, the control goes out of its loops body and executes else block. If it is specified, it is also optional, else यहाँ भी optional है. अगर else नहीं है तो सीधा ये following statements पर पहुंच जाता है, इसके आगे निकल जाता है डाउनवर्ड. अगर एल्स स्टेटमेंट आपने स्पेसिफाई किया है, इट इज ऑप्शनल स्टेटमेंट इन फॉर ऑल्सो. तो जैसे ही ये सारा कलेक्शन की वैल्यूज खत्म हो जाती हैं इटरेट होते होते, तो वो एल्स को एग्जीक्यूट करता हुआ रिमेनिंग स्टेटमेंट्स पर डाउनवर्ड एग्जिट कर जाता है. सो एल्स else block statements are executed if the
लूप टर्मिनेट्स नेचुरली, अगर ये लूप जो है नेचुरली टर्मिनेट करता है सारी वैल्यूज के साथ, तो एल्स को एग्जीक्यूट करता हुआ जाएगा। ठीक है, इफ लूप टर्मिनेट्स नेचुरल। ये लूप का बॉडी है, दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, इट इज एग्जीक्यूटेड वंस ईच टाइम इन इटरेबल, ये एक बार जितनी भी वैल्यूज हैं हर वैल्यू के लिए इसका बॉडी एग्जीक्यूट होगा। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। यहाँ भी मैंने एल्स का यूज नहीं दिखाया है, एल्स का यूज हम अगले वीडियो में आपको शो करेंगे। फॉर लेटर इन इंडिया, दिस इज ए स्ट्रिंग। सो एज यू हैव सीन द सिंटैक्स हियर, सिंटैक्स में आपने देखा था कि फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस और इटरेबल ऑब्जेक्ट यू कैन से। तो यहाँ पर लेटर नाम का वेरिएबल है, इसमें एक बार आई आएगा, एक बार एन आएगा लेटर की वैल्यू, एक बार डी आएगी, एक बार आई आएगा, देन ए आएगा। लेटर विल होल्ड ऑल द कैरेक्टर वन बाय वन इन दिस सीक्वेंस। स्ट्रिंग इज ऑल्सो a type of sequence you can say. So print letter, I is printed, N is printed, D, I, A will be printed because it will iterate 5 times. As long as in this object India as a string, in this object this letter will extract each letter, I mean each character। ठीक है, लेटर में पहले कैरेक्टर आई आएगा, आई इन इंडिया ट्रू, एन आएगा, एन इन इंडिया ट्रू, similarly DIA will also be found true. So letter will hold all characters one by one and will iterate 5 times because there are 5 characters and they will be printed. Print letter INDIA is being printed. Here the iteration object यहाँ पर जो sequence दे रहे हैं ये list है, list is holding these 5 values 10, 20, 30, 40, 50. So for x in list 1 print x. X will first hold 10 out of this list, the print x 10 is printed. Next iteration में x will hold 20, so 20 print करेंगे, print 20. Similarly 30, 40 and 50. After the values of the list object is finished, the loop terminates. End of the program. Similarly there is a range function also. रेंज का सिंटैक्स अगले स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर x in range 5, if I am writing one value over here 5, so it will create 0, 1, 2, 3, 4 means this value minus 1, इतनी वैल्यूज की एक लिस्ट क्रिएट करेगा रेंज फंक्शन। एंड फॉर दोज वैल्यूज x will have all values one after the other. सो प्रिंट x करेंगे तो पहले 0 प्रिंट करेगा, फिर 1, 2, 3, 4. So this is 5. That means if it is n, that means up to n minus 1 range will create all values from 0 onwards. So for those values the loop for loop will iterate. Now range function क्या है, जो भी आप पीछे यूज करके आ रहे हैं for में range, within for statement you have used a range function. So range function की qualities क्या है, what is range function, how it is used, let us see in this example. Range function returns the sequence of numbers starting from 0 by default and incremented by 1 by default and stops before the specified number. So range function जो है by default अगर आप range 5 देते हैं तो it will start from 0 and stop क्या करेगा, n minus 1 पे stop कर जाएगा, एक एक स्टेप जंप करेगा ये एवरी टाइम, इट विल जंप 1 by 1 स्टेप. सो स्टार्ट ऑप्शनल है, स्टॉप इज रिक्वायर्ड एंड स्टेप इज ऑल्सो ऑप्शनल, यानी कि एक वैल्यू जो स्टॉप है ये मस्ट है लिखना आपको. सो एटलीस्ट रेंज फंक्शन विल वर्क ऑन वन आर्ग्यूमेंट एटलीस्ट, दैट इज स्टॉप. सो हेयर यू कैन सी इन एग्जाम्पल, अगर x में लिखता हूँ रेंज 4, दैट मीन्स x में जो वैल्यूज आएंगी वो आएगी 0, 1, 2, 3, 4 बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड फ्रॉम n minus 1 एंड एट n minus 1. अगर n आपका 4 है तो इसकी एंडिंग आपकी 3 पर होगी, स्टार्ट 0 से होगा, एक एक स्टेप जंप करेगा. So if I implement the for loop on this x is a list, x is a sequence,
एक लिस्ट बनाएगा x में, n in x, so n will hold 0 1 2 3 4 values, तो x क्या है, एक लिस्ट. Now if I use two arguments here, that means the start value we are using 3 and stop we are using 6. So now it will create a list of 3 4 5. x में 3 4 5 आएगा and on these three values the loop will iterate. For n in x लिखूंगा, so print n if I write, so it will print 3 4 5. Similarly, if I specify all three parameters, all three arguments in range function, so it will create, I mean starting will be from 3 and stopping will be 10 minus 1, that is 9, and it will jump by 2 steps again and again. By default it jumps 1 step. If we specify 2 here as a third argument in range function, so it will step, I mean jump up by 2 steps. So ultimately the list will be created 3 plus 2 5 plus 2 7 plus 2 9. It will go up to 9, not 10 11. So if I implement for loop for this list x, so for n in x print n, it will print 3 5 7 9. This is what range function. So range function can also be utilized for the purpose of implementation of for loop and using in operator, membership operator. Fine. So this is a range function. Now let us proceed with the two more statements known as break statement and continue statement. What are these? These two statements can be used within the body of any loop. While loop की बॉडी में या for loop की बॉडी में, दोनों में आप ये statement break और continue use कर सकते हैं. Let us understand the uses of break statement and then continue statement. Break statement in Python terminates the current loop and resumes execution at the next statement. The most common use of break is when some external condition is triggered requiring a hasty exit from the loop. The break statement can be used in both while and for loop. अगर आपको फोर्सिवली विद इन द बॉडी ऑफ लूप आपने लूप 10 बार के लिए लगाया है, लेकिन आपको 10 से पहले ही ब्रेक करना पड़ता है इन सर्टेन सिचुएशन, तो वहां पर हम ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं. या यू डोंट नो or you don't know when to break, but you know a condition, you can specify a condition within the body of loop when to break. So as soon as that condition arises, the loop terminates using break statement. For example, I have written a loop for letter in Python. python के लिए मैंने लूप लिखा है और यहाँ मैं लिखता हूँ विद इन द बॉडी ऑफ लूप इफ लेटर इक्वल टू एच, यानी कि जैसे ही लेटर एच काउंट हो, लेटर की वैल्यू एच होगी, ब्रेक कर जाइए. सो लेट अस सी द आउटपुट. सॉरी. सो करंट लेटर इज पी, उसके बाद करंट लेटर इज वाई. आपका सेकेंड इटरेशन हुआ वाई के लिए, वाई इज प्रिंटेड. थर्ड इटरेशन हुआ टी के लिए, पाइथन का टी, सो करंट लेटर टी. और जैसे ही आपका लेटर वो एच उठाता है यहां से, इफ लेटर इक्वल टू एच ब्रेक, तो क्या हो गया, लूप टर्मिनेट होकर के कंट्रोल यहां पहुंच गया एट दिस पोजीशन बिलो प्रिंट लाइन. अदरवाइज प्रिंट वाज बीइंग एग्जीक्यूटेड, दिस वाज बीइंग इग्नोर्ड. इन केस दिस कंडीशन वाज फॉल्स, ब्रेक नहीं हो रहा था. आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी. दैट इज वाई यू वर गेटिंग करंट लेटर, लेटर की वैल्यू करंट लेटर पी, करंट लेटर वाई, करंट लेटर टी. एज सुन एज एच ये आया, लेटर इक्वल टू एच, लूप इज ब्रोकन डाउन, loop is terminated and control went below print statement. That is why we have got this output. See this example, numerical example. Here it was a string sequence. Here I am taking it, I mean break statement with while loop. ये for के साथ था. Variable equal to 10 while variable is greater than 0. That means it will run as long as the value of variable is 10, 9, 8 up to 1. So suppose variable is 10, variable is greater than 10, yes true, current variable value is 10. Variable equal to variable minus 1,
एक कम हो गया, दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप. इफ वेरिएबल इक्वल टू 5 देन ब्रेक, एट लास्ट प्रिंट गुड बाय. तो ये 5 होने पर आपका ब्रेक हो रहा है लूप, और ब्रेक होकर के कहाँ आएगा, इट विल कम ऑन दिस लाइन, इस इंडेंटेशन पर प्रिंट गुड बाय लिखेगा. तो आप देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा है, 10 9 8 7 6 इज प्रिंटेड. as soon as the variable's value has been decremented by 1, that has become 5. so variable equal to 5, break. तो ये सिचुएशन आ गई, ट्रू हो गया, ये कंडीशन वेरिएबल इक्वल टू 5 हैज बिकम ट्रू एंड द लूप इज ब्रोकन ड्यू टू ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंट्रोल केम बैक टू हेयर प्रिंट गुड बाय. एट लास्ट गुड बाय इज प्रिंटेड हेयर. so this is the way how break statement works. मीन्स कंडीशनली आपको लूप बीच से ब्रेक करना है, जितनी बार के लिए आपने लगाया है उसके बीच में कहीं ब्रेक करना है. सो विद इन द बॉडी ऑफ लूप यू कैन स्पेसिफाई स्पेशल कंडीशंस. as soon as that condition met, so the loop is terminated using break statement. As soon as break statement is encountered within for loop or while loop, the control is directed to go out of the loop block. loop के ब्लॉक से बाहर निकल जाता है. ये लूप का ब्लॉक है, तो यहां से ये कंट्रोल बाहर निकल करके यहां आ जाएगा. ओके, इग्नोरिंग सम ऑफ द स्टेट. in continue statement, Python returns the control to the beginning of while loop. while loop के beginning में continue से आ जाता है condition testing पर. The continue statement rejects all the remaining statements in the current iteration of the loop and moves the control back to the top of loop. Okay, continue statement can be used in both while and for loop. तो क्या करता है, कंटिन्यू, जैसे ही कंटिन्यू इनकाउंटर होता है विद इन द बॉडी ऑफ लूप, तो इट बाउंस बैक, यहां से इधर आ जाएगा, कहां पर, फॉर वाली लाइन पर, इन द बिगिनिंग, इन द टॉप ऑफ द लूप. फाइन. तो इसकी वर्किंग ये है, जैसे यहाँ कंटिन्यू मिलता है विद इन द बॉडी ऑफ लूप, इफ इट एनकाउंटर्स कंटिन्यू, सो कंटिन्यू क्या करेगा, तुरंत कंडीशन टेस्टिंग पर आ जाएगा इन द टॉप ऑफ द लूप. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट. और कंटिन्यू के बाद जो स्टेटमेंट है उस टाइम के लिए, उस इटरेशन के लिए क्या होगा, वो इग्नोर कर देगा. कंटिन्यू के बाद ये लाइन, अगर यहाँ पर कोई लाइन होती विद इन इफ, तो क्या हुआ, कंटिन्यू से बाउंस हो गया वापस, तो ये लाइन और ये लाइन, ये विद इन द बॉडी ऑफ दिस, ये वाली लाइन इग्नोर हुई. राइट. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस नाउ. For letter in Python, if letter is equal to h then continue, otherwise printing these things. यानी कि जब h होगा तो ये प्रिंट नहीं होगा, और कंटिन्यू से वो टॉप में चला जाएगा और वहां से o ले लेगा और n ले लेगा. p y t h को छोड़ देगा, o n प्रिंट होगा. यहाँ पर देखिए p y t o n इज बीइंग प्रिंटेड. h पर, h जैसे ही आता है लेटर की वैल्यू, क्या होता है, इट बाउंसेस बैक टू टेक द नेक्स्ट इटरेशन. नेक्स्ट इटरेशन में वो ओ को उठा लेता है. राइट. और जबकि प्रिंटिंग ऑफ करंट लेटर इज हियर आफ्टर कंटिन्यू, तो दिस लाइन इज इग्नोर्ड एट द टाइम व्हेन लेटर वाज एच. फॉर रिमेनिंग लेटर्स इट इज प्रिंटिंग p y t o n. फाइन. सो लेटर इज सपोज p, सो लेटर इज नॉट h, तो कंटिन्यू नहीं करेगा, प्रिंट करेगा p. वापस गया, y उठाया, y प्रिंट हुआ, t उठाया, t प्रिंट हुआ. h जब उठाता है वहां से लेटर की वैल्यू, तो इफ लेटर इज इक्वल टू h कंटिन्यू, सो यहां से कंट्रोल बाउंस होकर के नेक्स्ट इटरेशन o को ले लेता है. जबकि प्रिंटिंग ऑफ h इज हेयर, सो दैट इज इग्नोर्ड. एंड देयर आफ्टर आपका o लिया, लेटर इज इक्वल टू h नहीं, प्रिंट o. n लिया, लेटर इज इक्वल टू h नो, तो कंटिन्यू नहीं करेगा, प्रिंट किया n. सो दिस इज द आउटपुट p y t o n. h इज इग्नोर्ड, और एट द टाइम व्हेन लेटर इज इक्वल टू h, दिस लाइन विल बी इग्नोर्ड, दिस लाइन, बिकॉज यहीं से ये कंटिन्यू होके वापस चला जाता है टॉप में. Similarly, in while loop also we can use continue. Var equal to 10, while var is greater than 10, variable equal to variable minus 1. If variable equal to 5, then continue. Otherwise, print this thing. So, आप देखें यहाँ पर 10 है, 10 is greater than 0, true.
so it has come in the body of loop. वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल -1 9 हो गया, वेरिएबल इक्वल टू 5 नो, तो कंटिन्यू नहीं करेगा, प्रिंट करेगा 9, वापस बाउंस हुआ, वेरिएबल 9 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू, सो इट हैज बिकम 8, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी बिकॉज वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू 5, सो प्रिंट करंट वेरिएबल इज 8 7 6 प्रिंटेड। अब 6 जब प्रिंट करके वापस बाउंस होता है, सो 6 इज ग्रेटर देन 0, सो वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल -1 दैट इज 5। इफ वेरिएबल इक्वल टू 5 देन कंटिन्यू, सो अब क्या करेगा 5 के बार में, यहां से वापस यहां आ जाएगा, सो दैट इज 5, 5 is greater than 0, so it has become 4 due to this line, variable is equal to 5 no, continue नहीं करेगा, current variable value is 4, then it will go on because 5 is jumped, so 5 जब था आपका वेरिएबल की वैल्यू, तब इसने उसको जंप कर दिया, किसको जंप कर दिया, प्रिंट करंट वेरिएबल वैल्यू 5 को जंप कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया, कंट्रोल हैज गॉन टू दिस पॉइंट, so similarly it will go up to 0, suppose 1 is printed, 1 प्रिंट होने के बाद 1 is वापस बाउंस हुआ, लूप नेचुरल बाउंस, 1 is greater than 0 true, so 1 minus 1 0, वेरिएबल इक्वल टू 5 फॉल्स है, कंटिन्यू नहीं करेगा, यहाँ पर प्रिंट करता है 0, और 0 प्रिंट करने के बाद जैसे ही जाता है यहाँ पर 0 इज ग्रेटर देन 0 की टेस्टिंग फॉल्स हुई, फॉल्स होते ही कंट्रोल टर्मिनेट करके कहाँ आता है, लूप की बॉडी से बाहर जहां लिखा है गुड बाय, सो इट राइट्स गुड बाय। सो दिस इज हाउ this line is ignored in while loop and how this line is ignored in for loop also. So this is continuous statement. Now there is a pass statement in Python. It is used when a statement is required syntactically but you do not want any command or code to execute. Pass means do nothing, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करना है तो वहां आप सिंपली पास लगा देंगे, ओके। द पास स्टेटमेंट इज नल ऑपरेशन, इट डज नथिंग अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट, nothing happens when it executes. We use the pass statement to construct a body that does nothing, okay. So you see here, you can see here, for letters in Python, if letter equal to h pass, and this is a pass block, ये भी लिखा गया, पास करने के बाद it will do nothing and here it will write this is a pass block, otherwise it will keep on printing current letter. This will happen only in case the letter is h, तो p के केस में प्रिंट करेगा, y के केस में प्रिंट करेगा, t के केस में प्रिंट करेगा, जैसे h आया, लेटर इज h पास, पास मीन्स डू नथिंग, देन इफ के अंदर एक लाइन और लिखिए दिस इज ए पास ब्लॉक, तो ये भी प्रिंट करेगा, देन इट विल कम हियर करंट लेटर इज h, तो यहां आप देख रहे हैं दिस इज ए पास ब्लॉक, देन इट इज राइटिंग करंट लेटर इज h, so against pass it has not done anything, करंट लेटर o, करंट लेटर n, o होगा इसके बाद n होगा ऑब्वियसली, तो जब भी h लेटर की वैल्यू h थी तो वो पास किया, पास करने के बाद दिस इज ए पास ब्लॉक, एक लाइन मैंने लिख दिया है, दैट इज पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, तो लेटर h है तो पास, देन प्रिंट दिस, देन ऑब्वियसली दिस इज द पार्ट ऑफ लूप, तो वो करेगा ही करेगा। सो पास मीन्स डू नथिंग वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, जैसे आप लिख रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू 5 देन डू दिस एल्स पास, ऐसा आप करना चाहते हैं एल्स में पास कर सकते हैं, इफ x इज इक्वल टू 5 देन के केस में पास, एल्स के केस में आपको जॉब परफॉर्म करना है तो एल्स में आप कोडिंग करेंगे, देन में पास लिख देंगे, like that. Pass is a null operation, you can use it anywhere within the program, but it does nothing against it, simply do nothing, okay. So that's all about the two types of loop, for and while loop we have covered here, then break and continue statement we have covered here, so rest remaining nested loop and other remaining statements will be coming in next video. So if you have understood well, please like, share and subscribe the channel as well as video to your friends also. Thank you very much, thank you for watching.